بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے پہلی سی محبت۔ تو چلیے اس ناول کو شروع کر لیتے ہیں۔ صبح کا تارا پوری شدت سے جگر جگر کرتے ہوئے اپنا وجود قائم رکھنے کی کوشش میں افق کے پار گم ہوا جا رہا تھا، اور رات کی سیاہیاں صبح صادق کی سفیدیوں میں گھل گھل کر مٹ رہی تھیں۔ ایک لمبی سیاہ رات کا خوشگوار اختتام سنہری دن کی شکل میں ہونے جا رہا تھا، اور ایک مسافر کی لمبی مسافت اپنے انجام بخیر کو پہنچی تھی۔ میں سامان کی ٹرالی گھسیٹتا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لان سے باہر نکلا تو ایک خوشگوار صبح باہیں پھیلائے مجھ سے معانقہ کرنے کو تیار تھی کہ فی الحال اس وقت میں سوائے اس خوشگوار صبح کے اور کسی سے معانقہ نہیں کر سکتا تھا۔ سرپرائز دینے کا ایک ہی نقصان لمبی مسافت طے کر کے آنے والے کے لیے کافی نہیں بہت بڑا ہوتا ہے کہ سفر کے اختتام پر کوئی اپنا پرجوش اپنائیت لیے باہیں پھیلائے آپ کو اپنے استقبال کو نہ ملے، اور اس نقصان کو میں نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا، سو ملال بھی کم تھا۔ اور سچی بات ہے ملال یوں بھی کم تھا کہ ایئرپورٹ کے کمپاؤنڈ سے باہر آتے ہوئے مجھے اس نقصان پر خواہ مخواہ نفع مل جانے کا خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ ایک بالکل دھلی دھلائی نکھری خوشگوار بھینی خوشبو والی پرکثافت اور آلودگی سے پاک فضا سے ملنے کا سرپرائز نفع بخش احساس، ورنہ اس وقت آ کر مجھے سب اپنے لینے کے لیے آئے ہوتے تو اس وقت ان سے گلے ملنے، جھپیاں ڈالنے، ہاتھ ملانے، کیسے ہو، کیسے ہیں کے مکرر سوال کے بیچ اس کمواری نئی نویلی سج دھج والی صبح سے ملنے کا کہاں موقع ملنا تھا۔ ٹیکسی پر سامان رکھواتے اور بیٹھنے تک میں پوری طرح اپنے پیارے وطن کی اس پیاری صبح کی نیم خوشگوار اٹکھیلیاں کرتی بادل نسیم کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ ٹیکسی ڈرائیور کس رشک بھرے انداز میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور منور بھائی کی اس تاکید کے باوجود میں ذہنی طور پر بالکل الرٹ نہیں تھا کہ آج کل لاہور شہر چوریوں ڈکیتیوں کے حوالے سے زندہ دالانِ لاہور نہیں بلکہ زندہ دالانِ چوروں کا من پسند جنگل بن چکا تھا۔ میں کھڑکی سے کسی دیہاتی کی طرح پوری گردن نکالے اپنے دیس کی بانکی البیلی صبح کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں سمونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد پاکستان آئے ہیں؟ میری اس بچکانہ بے صبری حرکت کو دیکھتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور نے قیاس کیا ہوگا کہ میں شاید زمانوں بعد ادھر لوٹا ہوں، 2.5 سال بعد۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے ٹھنڈی معطر ہوا سے بڑا سا گھونٹ بھرا اور ذرا سا سر اندر کرتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور لمحہ بھر کو حیران ہوا اور پھر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ابھی سفیدی پوری طرح پھیل کر روشنی میں نہ ڈھلی تھی، اس لیے سڑکیں بالکل صاف شفاف، کسی بھی انسانی بھاگ دوڑ سے پاک، بڑے آرام سے ایک ہی کروٹ کے بل لیٹی تھیں، اور ٹیکسی گویا بغیر چپو کی کشتی کی مانند ان پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ میں باہر کے نظاروں میں مگن تھا اور ڈرائیور جمائیاں لیتے ہوئے مدی مدی آنکھوں سے ڈرائیونگ میں۔ ایک بار مجھے خیال آیا اسے ٹوکوں، سمجھاؤں، ذرا 10 منٹ کو اس نیند سے رخصت لے لوں، ورنہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملے بغیر اس جہاں سے رخصت کرا دو گے۔ پھر سوچا جیسے چل رہا ہے چلنے دو، وہ مجھے اکیلا تو رخصت نہیں کرائے گا، خود اپنا بھی ٹکٹ کٹوانا پڑے گا۔ ٹیکسی فراٹے سے کینٹ کی سیاہ چمکیلی سڑکیں رونتی مال روڈ کی طرف رواں تھی۔ خوبصورت سما، خوبصورت ماحول اور پرفضا مناظر انسان کی طبیعت پر کیسے خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں کہ میں ایک لمبے سفر کی تکان تک بھول گیا۔ اور سناؤ یار، کیسی چل رہی ہے آج کل؟ پھر طبیعت بشاش ہوئی تو میں نے یوں ہی بات کرنے کو ڈرائیور سے پوچھا، آپ امریکہ سے آ رہے ہیں نا؟ وہ مرر میں مجھے دیکھتے ہوئے سرخ ڈوروں والی نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ تکتے ہوئے الٹا پوچھنے لگا۔ ہاں، نیو یارک سے۔ تو وہاں تو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ خبریں ہوتی ہیں، الٹا ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ انکل سام، آج کل ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ وہ زیادہ مفصل جواب دیں گے۔ ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور کے منہ سے ایسی ہوش مندی کی بات کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اجی ہم تو وہ بد نصیب قوم ہے جس کا وجود تو ادھر اس ملک میں چل پھر رہا ہوتا ہے، اور سانسوں کا ریموٹ واشنگٹن اور نیو یارک کے قبضے میں ہوتا ہے۔ دفع کریں جی، کیا کرنا ہے اس موضوع کو صبح صبح نور کے تڑکے چھیڑ کر؟ دل جلانے والی بات۔ اس نے کہتے کہتے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا کر ہوا میں چلایا اور زیادہ تندہی سے گاڑی چلانے لگا۔ مہنگائی تو ادھر آج کل زوروں پر ہے، تم سناؤ تمہارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے؟ میرے منہ سے غیر اختیاری سا سوال نکلا، اور سوال کرنے کے بعد اس کی کٹیلی نگاہوں سے مجھے احساس ہوا کہ یہ سوال تو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور جلا کٹا ہے۔ رب سونے کا احسان ہے، ہماری محنت کی کمائی میں وہ برکت ڈال دیتا ہے۔ 4 کی جگہ 2 روٹیاں کھا کر پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہونے لگتا ہے، نہ بھی ہو تو خود کو محسوس کروانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہی ہوا نا۔ ہاتھ پیر سلامت ہیں، محنت کر رہے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، نہ ایسا کبھی کوئی شیطانی خیال دماغ میں آیا ہے، سو رات کو 2-3 گھنٹے ہی صحیح سکون کی میٹھی نیند سوتے ہیں، شکر ہے اس کا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا انداز عجیب بے نیازانہ سا تھا۔ کبھی باہر جانے کا خیال نہیں آیا؟
गाड़ी अब जीपीओ की पुरशिकवा इमारत के पहलू से गुजरती हुई जैन मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। बाएं तरफ हाईकोर्ट की इमारत की पेशानी पर बना तराजू बेबसी से सड़क पर गुजरने वालों का दिन भर मुंह तका करता था। मैं भी बस लम्हा भर को उसकी तरफ देख सका। पहले आता था, अब नहीं, उसने सर झटक कर कहा। अब क्यों नहीं? मैंने कदरे दिलचस्पी से पूछा। अब जो पाकिस्तानी सारी दुनिया में नंगे हो गए हैं, अपनी ही हुकूमत ने दहशतगर्दों के नाम पर पकड़ पकड़ कर मासूम लोगों को उनके हवाले करके उनकी हमदर्दियां लेने की बजाय उनकी उम्र भर की दुश्मनी खरीदी है। उसके बदले जो सलूक पाकिस्तानियों के साथ दूसरे मुल्कों की हदूद में दाखिल होने पर होता है, उसे देखकर तो जी कानों को हाथ लगाते हैं, 100 बार अल्लाह तौबा करते हैं। इधर की रूखी सूखी बारे में है, हम ऐसे डॉलरों और पौंडों से बाज आए जिनके बदले कपड़े उतार कर नुक्कड़ नुक्कड़ पर तलाशी देनी पड़े। इज्जत आबरू के साथ अपने मुल्क में सर उठाकर चलते हैं, कोई उंगली उठाए तो सीना तान लेते हैं। आदमी को जीने के लिए डॉलरों से ज्यादा इज्जत नफ्स की जरूरत होती है। वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ना सही, थोड़ी बहुत इधर मिल ही जाती है। बाहर के लालच में उसे भी कमा दें। वो मुझे टैक्सी ड्राइवर कम कोई दानिश्वर ज्यादा लग रहा था। उसकी सच्ची बातों ने मुझे चुप करा दिया। सामने चौबर जी के 4 मीनार बड़ी शान से सर उठाए खड़े थे। सिर्फ उनके सर ही उठे थे, वरना कहन साली और खस्ता हाली ने उनका रंगो रूप उड़ाकर रख दिया था। जरा जो सर झुकाकर खुद को देख लेते तो शायद अपने ही कदमों में मलबे के ढेर की सूरत में पड़े होते। यूं भी मलबे को मलबा बनाने में देर कितनी लगती है। इन खूबसूरत तारीखी मीनारों को यूं उजड़ी पुजड़ी बेरंग सी हालत में दामों से सर उठाए देखकर मुझे हकीकतन दुख हुआ था। मेरे बचपन के दिनों में इनकी ऐसी खस्ता हालत हरगिज ना थी। मेरे बचपन की यादों में इनका खूबसूरत तस्वुर मौजूद था। मैं इसी तस्वुराती नक्शे को सोचने लगा। राउंड अबाउट के गिर्द घूमकर टैक्सी अब राजगढ़ की गलियों का रुख कर चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मंजिल अब 2 गांव ही तो रह गई थी। सुबह सवेरे की सरगर्मियां भी पूरी तरह से मुतहर्रिक नहीं हुई थीं। दुकानें बंद थी और उनके शटर गिरे दरवाजों के आगे कहीं कहीं कोई मजदूर मुंह सर लपेटे सो रहा था और कहीं कोई कुत्ता ऊँग रहा था। भोली बिल्लियां मियाऊं मियाऊं करती गली के और दुकानों के थड़ों के नीचे से आ जा रही थीं। बस यहाँ से दाएं तरफ मोड़ लो। मेरे घर की गली आ गई थी। मैंने जरा पुरजोश होकर सीट पर आगे खिसकते हुए ड्राइवर से कहा। अगले लम्हे गाड़ी सिरकती हुई गहरे गहरे भूरे थोड़ा रंग उड़े लकड़ी के दरवाजे के आगे आकर रुक गई। मैंने नीचे उतरकर सामान उतरवाया। टैक्सी वाले को किराया देकर दरवाजे के बगल में घंटी के बटन को दबा दिया। भाजी, ये 50 रुपए जायद दे दिए आपने। टैक्सी वाला जाते जाते रुका। यार, एयरपोर्ट पर कोई अपना नहीं मिला, तुम अपने मिले तो देखकर खुशी हुई। फिर तुम्हारे साथ सफर भी अच्छा कटा। बच्चों के लिए शाम की कोई मीठी चीज ले जाना, कहना उनके चाचा ने भेजी है। और ये भी। मेरे कोट की जेब में चॉकलेट का बड़ा पैक बंद ही पड़ा था। सोचा था रास्ते में खाऊंगा। इसकी नौबत नहीं आई। वो पैकेट पकड़ते हुए मुझ तो जब सा हुआ। मैंने इसरार किया तो शुक्रिया अदा करते हुए टैक्सी में बैठकर चला गया। मैं एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर पर इतना मेहरबान क्यों हुआ, मुझे खुद पर हैरत सी हुई। वाकई कोई अपना तो ना था। फिर कोई अपना ना मिले तो अपने वतन से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स मिले वो अपना ही लगता है। भा मुनव्वर तो सुबह सवेरे उठकर मोड़ के थड़े पर बैठकर मिसवाक करने के आदी हैं। आज वो भी नजर नहीं आ रहे। मैंने वीरान पड़ी गली को कदरे तफसील से देखा। अब तो अच्छा खासा दिन निकल रहा था। फिर मैंने तीसरी बार घंटी का बटन दबाया। कमाल है, घोड़े बेचकर सोए हैं सब। अब क्या मैं खासा झिल्लाया था। कौन है पागल, सवेरे सवेरे घंटियां बजाए जा रहा है। फरीदा खड़खड़ाती स्लीपर घसीटती हस्बे आदत बदमिजाजी से बोलते हुए बाहर निकली थी। अब अगर मैं जवाब में मैं कह देता तो उसने ऊंचा ऊंचा शुरू हो जाना था। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है, सीधी तरह अपना नाम बताओ। भाई खोलो दरवाजा, हद हो गई, इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, मुदस्सिर हूँ मैं। बकरी कहलवाने के डर से मैंने फौरन अपना तारुफ करा डाला था। हाय अल्लाह जी, दरवाजा तो वो खोल ही चुकी थी। मुझे देखकर उसके मुंह से फौरी तौर पर यही निकल सका। बेयकीन सी नजरों से मुझे तके जा रही थी। आप तुसी तोबा, हद हो गई, इतला तो देते, सवेरे सवेरे कोई लेने आ जाता। खुशी से मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। ना सलाम ना दुआ। अल्लाह जी, तुसी कम देखा करो पंजाबी फिल्में। मैं उसकी खुशी से महसूस होते हुए आगे बढ़ा और होले से उसकी कलाई मरोड़ी। वो एक बार फिर हाय अल्लाह जी कहकर थोड़ा पीछे हो गई। उसकी इस कैफियत से इंजॉय करने के लिए मैंने ये सरप्राइज दिया था। सामान अंदर रखकर दरवाजा बंद करके मैं उसके पीछे चलते हुए सहन में आ गया। सहन की शुमाली दीवार के साथ लगे नीम के दरख्त के पत्ते खूब हरे भरे हो रहे थे और उन पर बैठी चिड़ियों ने खूब शोर मचा रखा था। 3 दिन पहले तो बात हुई थी, आपने जिक्र ही नहीं किया। आज मेरा इरादा था आपको फ़ोन करने का। अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? वो अभी भी खुशी और हैरत के बीच डोल रही थी। बस देख लो, तुम लोगों की याद आई तो दौड़ा चला आया। मैं उसी नीम के दरख्त के नीचे पड़ी चिलिंगा चारपाई पर तिरछा होकर नीम धरासा हो गया। फरीदा महजूब सी मेरे पास बैठकर नीचे झुकी और मेरे जूते उतारने लगी। रहने दो, मैं खुद अभी उतार लेता हूँ। मैंने सीधा होना चाहा तो उसने दूसरा हाथ मेरे पहलू पे रख दिया। मेरे पूरे बदन में लतीफ सी सनसनी दौड़ गई। वही ना समझ में आने वाला सुकून जो मुझे परदेश से आने के बाद घर में दाखिल होकर
फरीदा के पहले लम्हे महसूस हुआ करता था। मैंने बेइख्तियार आंखें मीच लीं। बच्चे सो रहे हैं अभी तक? मैंने उसी तरह बंद आंखों के साथ पूछा। हाँ, अभी टाइम क्या हुआ है? वो अब अपने नरम हाथों से मेरे पैरों को जुराबों की कैद से निकाल रही थी। उसने हाथ लगाया तो मेरे पैरों ने अपनी थकन का बरमला इजहार कर डाला और इन्हीं हाथों से मेरे पैरों को हल्का हल्का दबाने लगी। बस करो, क्या मुझे यहीं सुला दोगी? पहले बच्चों से मिल लूं। ये लोग नमाज नहीं पढ़ते क्या? बच्चों को देखने के ख्याल से मैं एकदम उठा और खड़ा हो गया। किसी किसी दिन जबरदस्ती करूं तो पढ़ लेते हैं, वरना आज तुमने खुद भी नहीं पढ़ी होगी। मैंने मुड़कर शिकायती लहजे में कहा तो वो खुलकर मुस्कुरा दी और जोर जोर से बच्चों को पुकारने लगी। गुड्डू के पेपर शुरू हो गए? नहीं, अगले हफ्ते पहला पर्चा है। रात को देर तक पढ़ता रहता है, इसलिए सुबह देर से उठता है। बच्चे मेरी आमद का सुनते ही हड़बड़ा कर उठ चुके थे और अब दाएं बाएं आगे पीछे से मुझसे लिपटे जा रहे थे। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। मैं वाकई सदफ को देखकर हैरान सा रह गया। 2.5 साल पहले जब आया था तो वह मेरी कमर तक आती थी और अब जैसे गुड्डू के बराबर हुई जा रही थी और टीपू भी उनके साथ खड़ा उनके बराबर का लग रहा था। सिर्फ नवाल अभी भी कुछ कमसिन सी थी। बेटियां तो इसी तरह बड़ी होती हैं। अभी देखो तो गुड़िया से खेलती और अभी देखो तो। फरीदा ने माँ के रवायती फिक्रमंदाना लहजे में कहा और मैं हंस पड़ा। और मैं अपनी गुड़िया के लिए अभी भी बारबी डॉल ही लाया हूँ। वो मुझे गुड़िया से खेलने के लिए खासी बड़ी लग रही है। और अब्बू मेरे लिए? टीपू फौरन अपना चेहरा मेरे सामने करते हुए बोला तो मैंने बेख्तियार जैसे अपने ही अक्स की पेशानी पर लब रख दिए। टीपू तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था। सबके लिए सब कुछ लाए होंगे अब्बू। पहले इन्हें सांस तो ले लेने दो। नाश्ता बनाऊं आपके लिए या बाजार से मंगवाऊं? फरीदा मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रही थी। उसने कैसा घिसा हुआ मलगजा सा लॉन का सूट पहन रखा था, अजीब जोगिया से रंग का, और बाल जैसे कितने दिनों से बनाए ही नहीं थे। फिर भी मुझे उस पर प्यार आ रहा था। इन्हीं सूरतों को तो इस बर्फीले इलाके में सफेद सफेद बर्फ जैसी पथरीली सूरतों को तकते हुए तरस जाया करता था। अभी थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर भा मुनव्वर और मंजूर को भी बुला लो। अभी तो वो घर पे होंगे, फिर कामों में निकल जाएंगे तो रात से पहले मुलाकात नहीं हो सकेगी। मेरे दोनों भाइयों के घर भी इसी गली में थे और मेरा दिल अपने माँ जायों को देखने के लिए भी इतना ही बेचैन था जितना फरीदा और बच्चों को देखने के लिए। मिल लीजिएगा, अभी मंडली की मंडली उठकर आ जाएगी, फिर तो आपके पास हमारे लिए घड़ियां भी नहीं होंगी। वो दोनों देर से ही जाते हैं, आप नाश्ता कर लें, फिर बुलवा लूंगी। फरीदा एकदम से चेहरा सख्त करते हुए कोफ्त भरे लहजे में बोली। उसे यकीनन इन तीनों सूटकेसों को पिछले कमरे में रखवाने की जल्दी होगी कि दोनों भाइयों और उनकी बीवियों बच्चों की उन पर नजर ना पड़ जाए। इस मामले में फरीदा किसी से भी रियायत नहीं बरतती थी कि मेरे हक हलाल और खून पसीने की कमाई पर वो खालिस्तन अपना और अपने बच्चों का हक समझती थी, चाहे अपने दोनों भाइयों और उनकी बीवियों से भी माले गनीमत को छुपाया करती थी। ये उसकी बच्चों सी खुशी तो थी ये उसकी बच्चों सी खुशी थी तो मैं उसकी खुशी में क्यों रखना डालता। यूं भी इतने सालों बाद तो हम मिलते थे। मैं तो एक पल के लिए भी उसकी खफगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये मेरा ही हाल नहीं था। फरीदा भी मेरी दिलजोई में कोई कसर उठा नहीं रखती थी। यही सोचता सोचता मैं गनूदगी में चला गया। सारा दिन ही गहमा गहमी में गुजरा। एक तो मेरी आमद बिना इतला थी, दूसरे भा मुनव्वर की अफशा की शादी इन दिनों तय करने का सोचा जा रहा था। मेरी आमद ने भा मुनव्वर के जोश को बढ़ा दिया। बस भाई, शादी की तारीख इसी महीने के आखिर तक रख लो। महीना तो अपना मुदस्सिर इधर ही है। रहीम शहीम से भा मुनव्वर ने मुझे अपनी बगल में लेते हुए खूब ऊंची आवाज में कहा। अरे नहीं भा, मैं तो उनकी बगल की गिरफ्त में मेरी पसलियां तो क्या झंझनाई, सांसें भी गड़मड़ होकर बाहर निकलने से इनकारी हो गई। मैं तो क्या, कितने दिनों के लिए आया है? उन्होंने झटके से मुझे अपनी बगल से परे किया। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। भा मुनव्वर और दूसरे तो शायद मुझे बाद में घूरते, बरामदे से गुजरती फरीदा ने यह सुनते ही सामने से गुजरती गुड़िया की कमर में जोर से धप लगा दी। पढ़ो मरो अंदर जाकर, सारा दिन इधर तो मेला लगा रहेगा। ना तुम भी दांत निकालती डेले फाड़ दी इधर टिकी रहोगी। फरीदा की आवाज और अल्फाज दोनों ही ऐसे काटदार थे कि सहन में बैठी कह कह लगाती महफिल की हंसी यकलक थम गई। चलो भाई, कुछ देर मुदस्सिर को भी आराम कर लेने दो, शाम को गप होगी। जुबैदा को फोन कर दिया तूने मुदस्सिर? भा मुनव्वर सबसे सियाने थे, अगले का चेहरा देखकर उसके इरादे भांप लिया करते थे। उन्होंने उठते हुए महफिल बर्खास्त कर दी। अभी कर दूंगा। वैसे मेरा ख्याल था मैं कल या परसों जाकर खुद ही मिल आता। 5-6 दिन तो मैं हूं ही इधर, मैंने थोड़ा शर्मिंदा से लहजे में कहा। फरीदा कभी कभी हद ही कर देती थी। मैं कौन सा रोज भाइयों की मंडली से जाकर बैठा करता था। सालों बाद तो ये मौका मिलता था, वो भी नसीबों की बात। मुझे गुस्से के साथ रंसा भी हुआ। ओहो, इधर ही बुला लेते हैं, कसूर कौन सा दूर है। बल्कि बहन भाई जरा 2 घड़ी बैठ जाएंगे, अब तो वो भी महीनों नहीं आती। शकीला तो चलो परदेश में हुई, तुम रहने दो, मैं जाकर उसे फोन कर देता हूँ। भा मुनव्वर बात खत्म करते हुए अपने बेटे और दोनों बेटियों को आगे लगाए बाहर निकल गए। भरजाई पहले ही जा चुकी थी। फरीदा अब किचन में बर्तन खड़काने में लगी हुई थी। इन खड़कते बर्तनों का साफ मतलब मुझे अंदर बुलाना था। थोड़ा नखरा, थोड़ी उल्फत जतानी, पर ना जाने क्यों उस घड़ी मेरे दिल पर जैसे उदासी लहरा लहरा कर उतर कर अपनी तहें जमाने लगी थी।
इस बेड़े में बेबे और अब्बा जी कभी इस चारपाई पर बैठकर हम तीनों भाइयों और दोनों बहनों को ऊंची ऊंची आवाजों में बुलाया करते थे। ऊपर वाली मंजिल पर चाचा बशीर, उनके 4 बच्चे और बीवी रहती थी। अब्बे से 3 साल छोटा था चाचा बशीर, जमाने भर का नखट्टू और नकारा। सारा दिन ऊपर वाली मंजिल पर बर्तन खटकते या तुक्का फसीहती रहती थी। तीसरी मंजिल पर अब्बे का चाचा शरीफ अपनी बेवा बेटी और उसके 3 बच्चों के साथ रहा करता था। यानी 3.5 मरले के घर में 18 अफराद रहा करते थे और ऊपर चौबारे में बेबे का नशई भाई मामू तुफैल फालतू काट कबाड़ के साथ दिन रात मुंह खोलकर हाथ पैर छोड़े सोया रहता था। हमारे घर के 2 कमरे, ये मट्टी का सहन और बरामदे में खुला बावर्ची खाना खानदान के अच्छे घरों में शुमार होता था। अपने भाई के बरक्स अब्बा मैकेनिक थे। अपना कोई बाकायदा दुकान तो नहीं थी, पर सारे इलाके को मालूम था ये सिराजुद्दीन बिजली का बड़ा अच्छा मैकेनिक है। इस वक्त चूंकि बिजली के इतने हालात नहीं थे बिजली के इतने आलात नहीं थे, मोटरें इक्का दुक्का बल्कि ना होने के बराबर लगी थीं। मोहल्ले में सरकारी पानी की फरावानी थी, सौबा की कमाई तो ज्यादा ना होती, मगर फिर भी हमारा गुजारा अच्छा ही हो जाता। मोहल्ले में होने वाली एक आध शादी में बत्तियां लगाने का काम मिल जाता तो चंद दिन काम के बगैर भी अच्छे गुजर जाते। हम सब अब्बा और अब्बे की कमाई को यूं ही समझा करते थे। बेबे तो अक्सर ताने भी दिया करती थी, जा जाकर देख लोगों ने घरों में क्या रेल पेल लगा रखी है। ऊपर तेरा भाई बशीर ही नहीं, मौसम की पहली सब्जी, पहला फल, ख्वाह कितना महंगा क्यों ना हो, उसके घर आता है। और हम जब वो फल सब्जी मौसम के दरमियान में टके टके सेर बिक रहा होता है तब नसीब होता है। तो हमारे लिए करता क्या है, मुनव्वरे को पंच करा के उठा लिया। ये मुदस्सिर और मंजूर रो रो कर 5वीं कर लें तो इन्हें भी घर बिठाकर मैकेनिकी सिखा देना, नहीं तो मुनव्वरे की तरह बैठे मंजियां तोड़ा करेंगे। कोई 4 दिन हम भी अच्छे देख लें। ये शायद बेबे का नाशुक्रापन था कि 4 दिन अच्छे आते, अल्लाह ने नाराज होकर इन गए गुजरे मुवाफिक दिनों को भी हमारे बीच से उठा लिया। मैं 9वीं में था और मंजूर 7वीं में। भाई मुनव्वर ने चाचा बशीर की उल्फत से खूब उल्फत बढ़ाने के बाद घर में तड़ियां धमकियां लगाकर अब्बे और बेबे को शादी पर राजी कर लिया था। अगरचे अभी तक भाई मुनव्वर ने काम के नाम पर कभी तिनका धरा नहीं था। चाचा बशीर के अच्छा सोचते हैं का जवाब सुनकर अब्बे ने भाई मुनव्वर को किसी दुकान में नौकर रखवा दिया। पहली तनख्वाह आई तो बकौल अम्मा के शरीकों के मुंह बंद हो गए और चाचा बशीर को बगलें झांकते हुए हाँ करते ही बनी। उल्फत ऊपरी मंजिल से नीचे आ गई और हमारा घर जो पहले ही सुकड़ सुकड़ कर 2 कमरों में गुजारा कर रहा था, एक कमरे में आ गया। अब्बा और बेबे मुस्तकिल बरामदे में मुंतकिल हो गए। इन्हीं दिनों अब्बा ने अपने रिश्ते की बहन के घर की पैदा का रिश्ता तय कर दिया। तारीख रखी थी कि एक घर में मोटर ठीक करते हुए अब्बे को जो बिजली का झटका लगा था उसका दूसरा सांस ना निकला और हमारे घर से वो गए गुजरे दिन भी उठ गए। जुबैदा की शादी में घर के बस 2-4 बर्तन भांडे बिकने से रह गए और जो कर्ज चढ़ा वो अलहदा। अब्बे की जुदाई, मुआशी अबतरी और घर में बढ़ती हुई उल्फत की जोर आवरी ने बेबे को मुस्तकिल चारपाई पर डाल दिया। मैं 10वीं भी मुकम्मल ना कर सका और मंजूर ने 7वीं भी ना की। मुझे शुरू से अब्बा के काम से दिलचस्पी थी और मैं बचपन से अक्सर साथ ही जाया करता था। फ्यूज लगाना, पंखा लटकाना, बल्ब, ट्यूब लाइट, मोटर फिट करना, शादी ब्याह में बत्तियां लगाने के लिए कनेक्शन की तारें कहाँ जोड़ना है, सब अब्बा के सिखाए बगैर ही सीख गया था। और पता भी नहीं चला कब लोग सिराजुद्दीन के दरवाजे पर आकर मुदस्सरे की आवाज़ें लगाने लगे और मैं अपना टूल बक्स और पेचकस, टेस्टर और दूसरे औजारों का ठेला उठाकर उनके साथ निकल पड़ता। भा मुनव्वर की हड़हरामी ने उन्हें 2-4 माह से ज्यादा पहली नौकरी पर टिकने नहीं दिया। वो 2-4 महीने काम करता और 8 महीने घर बैठकर माँ और बीवी के मार्कों में कभी एक फरीक का हामी बनकर जूते ताने खाता तो कभी दूसरे की लाते। अब घर की सारी जिम्मेदारी खुद ब खुद मेरे कंधों पर आ गई थी। फरीदा मामे सद्दीक की तीसरे नंबर वाली बेटी थी। इससे पहले 2 भाई और बाद में एक बहन थी। वो खुद कैसी थी मुझे उसका एहसास इन्हीं दिनों हुआ था जब वो बहाने बहाने से मामी के साथ बन ठन कर बेबे की खैरियत पूछने और उल्फत भाभी से होने वाले मार्कों की तफसील जानने के लिए आया करती थी। सूखी चुहिया जैसी चोटी को अपने बालों से दुगने भारी परांदे में लपेटे। फरीदा में कोई खास बात नहीं थी, पर उसकी गुलाफी मोटी मोटी आंखें, उसके सूखे हड्डियों के उभार वाले रुखसारों और बड़े से दहाने के सारे ऐप्स को अनोखे से पुरसोज हुज़न में बदल देती थी। इन आंखों ने मुझे इन दिनों डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया जब मुझे इश्क मोहब्बत के मायने मालूम थे, ना ही इनको पालने का वक्त। फिर भी कुदरत ने जैसे मेरे मासूम जज्बा शौक को भांपते हुए फरीदा को हंगामी बुनियादों पर मेरा नसीब बनाने का फैसला लिख डाला। बेबे को एक रात दिल का दौरा पड़ा। दौरा तो मामूली था पर उसके नफ्सियाती असरात बड़े संगीन थे और नामालूम मेरा बेबे पर क्या भार था कि उसने अगले 2 दिनों में उस जानलेवा दौरे से संभलते ही शाम और शाम भाई की मिन्नत तरले करके मेरा और फरीदा का निकाह पढ़वा दिया। मंजूर और शकीला को बेबे के साथ वो दूसरा कमरा छोड़कर बरामदे में अपना बिस्तर लगाने पड़ गए। फरीदा से मैंने बहुत तवक्कुआत नहीं बांधी थी और ना वो मुझे कोई सीधी सादी लगती थी जो आते ही उल्फत भाभी की
तरारियों के आगे हथियार डाल देगी। मैं दिल ही दिल में घर में बर्पा होने वाली नई जंगों के लिए खुद को तैयार कर चुका था, मगर मेरे ख्यालात के बिल्कुल बरक्स। फरीदा बहुत मोहब्बत करने, ख्याल रखने वाली और थोड़ी कम गो निकली, अपने तबके की दूसरी लड़कियों से खासी मुख्तलिफ। ये मुझे खासी खुशगवार सी हैरत हुई और बेबे इसे सरासर मेरी खुशकिस्मती गर्दानती थी। और मैं जिस दौरे को मामूली जान रहा था वो मेरी शादी के तीसरे महीने बेबे की जान ले गया और बरामदे में शकीला और मंजूर की चारपाइयां रह गईं। बरामदे के सूने मंजर को याद करते मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैं आंखें मसल रहा था जब फरीदा खुसर पुसर करती नाराज चेहरा लिए मेरे पास आकर बैठ गई। 6 दिनों के लिए आने की भला क्या जरूरत थी? जहाँ 2.5 साल से दिल पर जुदाई का पत्थर रखे बैठी थी वहां कुछ और महीने सह लेती। 2.5 सालों बाद महीने की छुट्टी बहुत ज्यादा लगी थी क्या? वो नाराज नाराज लहजे में शिकवा करते हुए मुझे इस लम्हे कितनी अपनी अपनी सी लगी थी, बिल्कुल अव्वलीन दिनों जैसी जब मुझे रात को किसी तकरीब में काम की वजह से देर हो जाती तो वो बेचैन सी बरामदे और सहन में बहाने बहाने से चकराती रहती। मैं वहाँ मुलाजिम हूँ मेरी जान, कोई अपना बिजनेस नहीं कि अपनी मर्जी से जब चाहूँ महीने की छुट्टी लेकर आ जाऊँ, मजबूरी है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से कहा। और नया शोशा सुना है आपने? ये जो आपके भाई बैठे खुशगपियां बिगाड़ रहे थे यूं ही बेसबब ना थी। वो ऐसी मुतासब तो कभी ना रही थी। मैंने गौर से फरीदा को देखा। आप आए हैं तो प्लाट का काम शुरू करवा कर जाएं। वो चंद लम्हे मेरे इस्तफसार का इंतजार करने के बाद बोली। इतने दिन तो नहीं हूं मैं इधर, मैंने जरा सुर्दगी से कहा। आपके भाई साहब मुनव्वर भा ने सारे खानदान में फैला दिया है कि मुदस्सिर अपना ये वाला घर मुझे दे जाएगा। इसकी तो गुलबर्ग में कोठी तैयार हो रही है। इसने इस खंडर का क्या करना है? खरीदना इस मलबे को किसी ने है नहीं। मेरे बच्चे जवान हैं, कब तक किराए पर लेकर धक्के खाता रहूं? इस बार मुदस्सिर आएगा तो अपने नाम पर घर करवा लूंगा। फरीदा चबा चबा कर बोल रही थी। उसकी बात सुनकर लम्हा भर को मैं भी चुप सा रह गया। मेरे परदेश के मुशक्कत भरे तकलीफ दे इब्तदाई सालों की कमाई तो इस घर जिसे फरीदा भी खंडर और चिड़ियाघर के नाम से बुलाती थी नहीं, जिसे चिड़ियाघर के नाम से बुलाती थी, वो अपने नाम कराने में लग गई। चाचा बशीर को मोटी रकम देकर उनका हिस्सा दिया, फिर अब्बे के चाचा शरीफ और उनकी बेवा बेटी को लाखों देकर निकाला, और मामा तो फैल, उसका नशा पानी तो अभी तक मेरे भेजे हुए रुपयों से चलता था। इतने सालों की मेहनत की कमाई जो इस खंडर को अपने नाम करवाने में बर्बाद की, वही हम अपना हिस्सा लेकर कहीं किराए पर या एक कमरे का घर लेकर रह लेते तो आज लोगों की हरीस नजरें ना हमारी तरफ टिकी होती। फरीदा उसी तपे हुए लहजे में बोली। तुम्हारे और बच्चों के अकेले रहने का ख्याल था। ये घर, गलियां, इलाके समझो अपने ही तो हैं सब। फिर तुम्हारे भाइयों के घर भी पास। मेरे बाद तुम अकेली और कैसे रह सकती थी? ये इकलौती दलील थी जिसके जरिए मैं हर बार फरीदा को यहीं रहने पर मजबूर किया करता था। अब सोचता हूँ गलत करता था। क्या फायदा हुआ लाखों डुबोने का? अब अगर भा मुनव्वर ने यह मशहूर कर दिया है तो लामुहाला मुझे ये करना पड़ेगा। इस वक्त खानदान भर में उनसे क्या गुजरा और लंबे चौड़े कुंबे वाला कोई और नहीं था, और मैं ये घर बेचकर 4 पैसे वसूल लूंगा तो सारा खानदान थू थू करेगा। भा मुनव्वर के 4 बेटे थे और चारों बाप की तरह नखट्टू कामचोर। 4 बेटियां, कोठे जितनी ऊंची लंबी, सब शादी के लिए तैयार। फरीदा का गुस्सा भेजा नहीं था। अच्छा चलो पकाया क्या है, भूख लगी है। ये बच्चे किधर हैं? मैंने फिलहाल इस भोजल मौजूद से दिमाग हटाने के लिए उठते हुए कहा और अंदर चल दिया। हाँ, मेरे कहे की परवाह न करना, सब लौटा दो इन तोफेलों पर। इनकी तो न नीयत भरती है न भूख मिटती है। खुद कोलों के बैल बने रहो और उनके हाथ फैलते रहें। पहली बार इनकार किया होता तो आज मुंह फाड़ फाड़ कर हकना जता रहे होते। हिस्सा भी वसूल लिया, अकड़ कर जेबें भरकर निकले और अब फिर दावेदार बनकर आ गए। सारे खसारे क्या हमारे लिए हैं? जुदाई में और बच्चे झेलें और मीठा मीठा ये हप हप खाते जाएं। मतलबी मौका परस्त ऐसे होते हैं भाई। फरीदा की बड़बड़ाहट खाने के दौरान और खाने के बाद भी जारी थी। मैं खाने के बाद लेटा बच्चों से बातें कर रहा था। अब फरीदा किचन से फारिग होकर आती तो इन सूटकेसों को खोलने की मुहिम सर की जाती। फरीदा तो ना आई। उसकी दोनों भाभियां और भाई आ गए। फिर उनके साथ बातें करते चाय पीते शाम हो गई। उनके आने से फरीदा का मूड भी कदरे बेहतर हो गया, मगर शाम ढले भा मुनव्वर और मंजूर फिर से आ गए तो उसके चेहरे का तनाव पहली हालत पर चला गया। तो मैं दोनों के साथ बाहर निकल गया, मोहल्ले के पुराने यार दोस्तों और अब्बा के दोस्तों से मिलने, सलाम दुआ के बहाने। और बाहर जाकर सबसे मिलने के दौरान वाकई मेरे दिल पर छाई उदासी की लहर कहीं कम होती चली गई। जब रात गए मैं घर लौटा तो साफ सुथरे घर के साथ फरीदा भी खूब बनी संवरी हुई थी। फाजई कलर के सूट पर शायद कोई कढ़ाई थी या मुकेश में, तमीज नहीं कर सका। जो भी था उसके कदरे सेहतमंद जिस्म पर खूब उठ रहा था। कंधों तक कटे बाल ताज़ा शैम्पू किए हुए थे और हल्के मेकअप के साथ तेज कलर की लिपस्टिक उसे पुरकशिश बना रही थी, और दिन भर के मुकाबले में उसके हुलिये की तरह उसका मिजाज भी शगुफ्ता हो रहा था। उसने खाने में भी अपने हाथ और सलीके की तमाम तर कोशिश को मुजतमा किया था। मटन बिरयानी मुझे पहले भी उसके हाथ की पसंद थी। आज तो उसका जायका और खुशबू दोनों लाजवाब थे, और मीठे में फिरनी दोनों मेरी पसंद की चीज़ें थीं। एहतियात करते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा खा गया। उसने बच्चों को जल्दी सोने के लिए भेज दिया। यूँ भी बच्चों को अपने तहाइफ मिल चुके थे और ज़्यादा वक्त अपनी चीज़ों के साथ गुजारना चाह रहे थे।
अभी रिश्तेदारों को देने वाले तोहफे की बंदरबांट बाकी थी और यह तकलीफ दे मरहला सुबह ही तय होना था। इतना अरसा कैसे मेरे बगैर गुजारा करते हो? और यही वो मरहला होता था जब भी मैं वापस आकर उसकी कुर्बत का तलबगार होता, वो भड़क उठती। फिर शकूका शुबहात, सवालों और मफरूज़ों और मेरी दलीलों, कस्मों, वादों, इरादों की तवील फहरिस्त होती जो मैं उसके हुजूर पेश करते करते थक जाता। अगरचा इंजाम कार वो एक मशरकी बीवी की तरह शोहर की रजा और खुशी की खातिर सरेंडर तो कर देती, मगर मेरे दिल में बाल सा आ जाता कि इसे मेरा यकीन क्यों नहीं। किस तरह परदेस में, फिर इस देश में कि जहाँ कदम कदम पर तरगीबात यूं सरेराह आदमी का रास्ता काटती हैं जैसे कोई निशान राह, और मैं कैसे कैसे इन तरगीबात से निगाह चुराकर रास्ता बदलता हूँ, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह। मर्द होकर कैसे इतने पाकबाज रह सकते हो, वो भी इस शहर में जहाँ पर कदम 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 पर रास्ता रोकने वाली होंगी। वो सरेंडर करते करते भी ताना मार जाती और मेरे पास दलीलें कम पड़ने लगती। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी कस्मों में कितना सच्चा हूँ और उसके साथ बंधे हुए ताल्लुक में कितना खरा, फिर भी इसे यकीन नहीं आता। तो इस मुकाम पर आकर मेरा दिल चाहता मैं उसे लात मारकर सारे शकूक कबूलते हुए हमेशा के लिए उसे छोड़कर दफा हो जाऊं और उससे सिर्फ डॉलरों के ट्रांसफर का ताल्लुक रखूं और सारे ताल्लुक तोड़ डालूं। मगर इसके बावजूद मैं एक कमजोर शोहर था कि किसी भी सूरत अपनी बीवी से ना तो बेवफाई कर सकता था, ना अपनी तस्लील पर कतई ताल्लुक। वो अब मेरे पहलू में मुतमईन सो रही थी और मैं कुट रहा था। अगली सुबह अगली सुबह काफी ले दे के बाद फरीदा सबको वही तहफ़ देने पर राजी हो गई जो मैं सबके लिए लाया था। अभी राशिद भाई आएंगे, जाकर प्लॉट पर हो आइए और ठेकेदार से मिलकर सारा नक्शा और खर्च समझ लीजिए। अब मेरे भाइयों ने तो सारे ठेके नहीं ले रखे, प्लॉट भी खरीद कर दिया, अब इसकी तामीर के लिए भी वही भाग दौड़ करें। मैं भी कुछ हैरान था। फरीदा ने कल से भाई के कारनामे को जताया नहीं और मैं भी जताता जताता रह गया कि तुम्हारे भाई ने जो प्लॉट की रकम से कटौतियां कर करके इसी इलाके में अपना प्लॉट खरीदा है। क्या एक किराए की वीडियो शॉप से गुलबर्ग के पोश एरिया में 7 मरले का प्लॉट लेना मुमकिन है उसके लिए? मेरी शोहराना वफादारी फिर आड़े आ गई। अच्छा चलूंगा, लेकिन तामीर के लिए यकमुश्त इतनी बड़ी रकम निकालना मुश्किल होगी। तुमसे कहा था 10-12 मरले का प्लॉट ले लो, मगर तुमने तो किनाल का लफ्ज मुंह से निकाला और पूरा करके छोड़ा। अब इस किनार पर घर बनाना आसान काम है। मैं चुप रहने का सोचकर भी कह गया, हाँ तो सारी जिंदगी चिड़ियाघर में गुजारी है, सारे कदीमा के खंडर में रहकर। बरसात हो या गर्मियों की आंधियां, दिल डरता ही रहता है कि ये मलबा हमारे ऊपर आकर अभी हमारा मकबरा बनाए के बनाए। अब अगर इतनी दुश्वारी के बाद अल्लाह ने मौका दिया तो बंदा इतना घर तो लेकर खुलकर सांस आ सके। सारी जिंदगी तो सहम सहम कर गुजार दी, एक खुशी तो तुम मेरी पूरी नहीं कर सकते। बहन भाइयों के मुंह से निकला हर गलत सलत लफ्ज भी तुम्हारे लिए हदीस। वो हस्बे तवक्का नॉन स्टॉप बोलती चली गई। मेरे सेलफोन की बीप बज रही थी। मैं जान छुड़ाकर उठ गया। जी जी हाजी साहब, खैरियत से पहुंच गया? जी अल्लाह का शुक्र है। जी अच्छा अच्छा, आज ही निकल जाता हूँ। जी मैं बस अभी रवाना होता हूँ। गाड़ी गाड़ी तो नहीं है? चले कर लूँगा, बस मैं अभी घंटे भर में रवाना होता हूँ, आप फिक्र न करें। जी जी टिकट तो मेरी भी कंफर्म है वापसी की, मंगल को। ठीक है, जो आपका हुक्म। मैं पहुँचते ही आपको खबर करता हूँ। आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज। मेरे बोलने के दौरान ही फरीदा उठकर मेरे पास चली आई। कहाँ किधर निकल रहे हैं अभी? वो बहुत सारा गुस्सा दबाकर पूछ रही थी। मैं जरा गुजरा वाला जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। तुम खाना अच्छा सा पका लेना और ये सामने बच्चों वाला कमरा तैयार कर देना। हाजी साहब की बेटी और बीवी आएंगी मेरे साथ। वो यहाँ किसी फौरगी पर आई थी, उनकी वापसी मेरे साथ ही है मंगल वाले दिन। कल हफ्ता है, 4 दिन वो इधर ही रहेंगी। उनकी मदद में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, पता है ना तुम्हें। मैं उसे जल्दी जल्दी कहते हुए अलमारी की तरफ अपने कपड़े लेने के लिए बढ़ गया। वो कुछ हैरान, कुछ परेशान और कुछ गुस्से में लम्हेजे वहीं खड़ी थी। अब वो हैरान हो या गुस्से में तूफान उठाए, मुझे इस वक्त इस चीज़ की परवाह नहीं थी। आखिर मेरी रोजी का मामला था, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता था। उसके बड़बड़ाने, भोलने, खफा होने की परवाह किए बगैर मैं घंटा भर में तैयार होकर बाहर निकल गया। रेंटे कार से गाड़ी 4 दिनों के लिए रेंट पर ली और पेट्रोल पानी भरवा कर गुजरांवाला की तरफ रवाना हो गया। बेबे के बाद शकीला की शादी मंजूर के रोजगार और शादी का मसला खुद ब खुद मेरे जिम्मे लग गया। भा मुनव्वर को तो इन दिनों एक ही काम था, बच्चे पैदा करना और बीवी की हमायत में सबसे लड़ाइयाँ करना। मैंने मैकेनिकी का काम पार्ट टाइम करते हुए एक वीडियो शॉप पर नौकरी कर ली, जहाँ इन दिनों ज़्यादातर शादियों पर मूवीज़ बनाना, वीसीआर और वीडियो कैसेट किराए पर देना शामिल था। दो नौकरियों करने के बावजूद गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। ऊपर तले 3 बच्चों की पैदाइश ने मेरे अपने घरेलू अखराजात में बेतहाशा इजाफा कर दिया था। फिर बहन भाई की जिम्मेदारी। मंजूर भी बड़े भाई की देखा देखी कोई काम टिककर संजीदगी से ना करता था। यूं भी हमारे खानदान में मर्दों की हड़हरामी ज़रबुल मिसल थी, उन्हें काम करना दोबर लगता। इन दिनों जब मेरी तंगदस्ती अरूज पर थी, पार्ट टाइम बहुत दिनों से कोई काम नहीं मिला था, तब हाजी जमालुद्दीन अपने भाई की शादी की मूवी बनवाने हमारी दुकान की खिदमत लेने आए। वहीं से मैं हाजी साहब से मुतारिफ हुआ। वो कई सालों से अमेरिका में थे
اور ایک چھوٹے سے گروسری اسٹور کے مالک بھی بن چکے تھے۔ انہوں نے مجھے امریکہ جانے کو کہا تو پہلی بار مجھے بہت عجیب لگا یہ سن کر، اپنا گھر بار ملک شہر چھوڑ کر چلا جاؤں، ناممکن۔ فریدہ سے بات کی، وہ بھی ناراضی ہوئی، اسے بھی میری رفاقت میں روکی سوکھی گوارا تھی مگر جدائی نہیں۔ حاجی صاحب مجھے اپنا کارڈ دے کر چلے گئے اور میں بھول بھال بھی گیا۔ حالات دن بدن دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ گزارا تو دور کی بات، اب تو سر پر قرض ہی اتنا چڑھ گیا تھا کہ اتارنے کے لیے بھی الگ سے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ ان ہی دنوں ہمارے محلے کے ایک لڑکے نے کسی ایجنٹ کے ذریعے سمندری راستے سے امریکہ جانے کا پروگرام بنایا تو میں بھی سوچنے لگا۔ پھر بہت سارے دن اور بہت ساری راتیں ہم دونوں میاں بیوی نے سوچتے ہوئے بالآخر جدائی کا بھاری پتھر اپنے سینوں پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایجنٹ کو دینے کے لیے نئے سرے سے قرض لیا گیا اور سب کی دعاؤں کے سائے میں پردیس کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان دنوں امریکہ کیا کسی بھی یورپی ملک میں جانا اتنا جان جوکھوں کا کام نہیں تھا۔ اچھی رقم دے کر بندہ قانونی طریقے سے جا سکتا تھا۔ میں اور شکیل نیو یارک ہی پہنچے مگر ہمارے پاس نہ تو قانونی ویزا تھا، نہ رہائش، نہ روزگار۔ چوری چھپے اسی ایجنٹ کے بتائے ہوئے بندوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے، بھوکے پیاسے پولیس سے چھپتے۔ وہ چند مہینے میری زندگی کے تلخ ترین مہینے تھے۔ 2-3 بار گھر خط لکھا۔ جواب پر فریدہ نے رو رو کر لکھا کہ آپ کسی طرح واپس آ جائیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم ادھر بھوکوں گزارا کر لیں گے، آپ آ جائیں۔ میں کشمکش میں پڑ گیا کہ شکیل پکڑا گیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھا اس لیے بچ گیا، مگر کب تک؟ پردیس کا ہراس کم نہیں تھا کہ پکڑے جانے کا خوف۔ میں گڑ گڑا کر سجدے میں گرتا، اللہ سے وسیلے کی دعا کرتا۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ اچانک مجھے حاجی جمال دین مل گئے۔ انہوں نے میرے ان برے دنوں کے کانٹے یوں چن لیے جیسے کوئی دوا کسی درد کے مارے مریض کا درد چنتی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، حاجی صاحب کے احسانات کا بڑا اونچا ہی ہوتا چلا گیا۔ اب انہوں نے اگر مجھے یہ معمولی سا کام کہا تو کیا میں نہ کرتا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں دوپہر تک گجرانوالے کے اس نواحی گاؤں میں پہنچ گیا اور شام سے پہلے ان دونوں خواتین کو لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ حاجی صاحب کی بیگم کی بہن فوت ہو گئی تھیں، جس کے پرسے کے لیے وہ پاکستان آئی تھیں۔ میرا تو سیل فون راستے میں کہیں بیگ سے گر گیا تھا، جبکہ زہرا کا کسی نے چپکے سے نکال لیا۔ فون کے لیے جگاؤں کے کروتے PCO جانا پڑتا۔ سوچا تو شام کو جا کر فون کر کے حاجی صاحب کو بتا دوں گی کہ ہم خیریت سے ہیں۔ حاجی صاحب کی بیگم نے رابطہ نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ دونوں خواتین اس گرم موسم میں بھی عبایا پہنے ہوئے اور اسکارف لیے ہوئے تھیں۔ میرا ان دونوں سے احترام کا رشتہ تھا کہ آج تک میرا ان دونوں ماں بیٹی سے سامنا ہو بھی جاتا تو کبھی نظر نہیں ملی تھی۔ میری شرافت اور حاجی صاحب کے احسانات مجھے نگاہ اٹھانے ہی نہیں دیتے تھے۔ ابھی تک ان علاقوں کی وہی حالت ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے تھی۔ دیکھ کر دل ہی دکھتا رہا ہے، غربت، جہالت اور سہولتوں کی کمی جیسے کوئی ان لوگوں کا والی وارث ہی نہیں۔ بیگم جمال دن دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں، اور یہ غربت اور انتہا درجے کی مفلسی ہی تو ہے جو اچھے بھلے شریف بھلے مانس لوگوں کی عیاری اور دھوکہ دہی پر اکساتی ہے۔ ہم کسی کو کیا الزام دیں؟ آخر میں وہ ایک آہ سی بھر کر چپ ہو گئیں تو میں نے نادانستگی میں زہرا جمال کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ گاڑی کے بند شیشوں سے باہر دھول اڑاتی کوڑے کرکٹ اور گند سے اٹی سڑکوں اور راستوں کو پلک جھپکے بغیر دیکھ رہی تھی۔ ہم گناہ گار ہوتے، اپنے اللہ کے بھی، اپنی بیٹی کے بھی اور اس نعیم کی بیوی اور 2 بچوں کے بھی۔ ہمارا آنا کام کر گیا۔ بیگم جمال بولی تو میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نعیم کی بیوی اور بچے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اور فقط اپنے پیر جمانے کی خاطر اس نے اپنی بیوی، اس کے گھر والوں اور اپنے گھر والوں کی سختی سے تاکید کر دی کہ کوئی تحقیق کرنے آئے تو کہہ دینا۔ نعیم تو اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ اللہ میری توبہ، پیسے کے لیے یہ لوگ کیسے کیسے مقدس رشتوں کو داغدار کر ڈالتے ہیں۔ میں نے سب سن کر اپنے لب ہی سیے رکھے۔ جھگڑتے بھی تو کس سے؟ پہلے ہماری بچی کے ساتھ دھوکہ ہوا، الٹا ہم نے ہر جانا ادا کیا، اب اگر یہ نعیم… پلیز امی جان، چینج دا ٹاپک۔ زہرا جمال کی فراق پیشانی پر بڑا نمایاں بل آیا تھا اور لہجے میں کچھ چٹکا تھا کہ بیگم جمال نے لب بھینچ لیے۔ زہرا کی پہلی شادی بھی حاجی صاحب کے کسی رشتے دار سے ادھر نیو یارک میں ہوئی تھی، جسے انہوں نے سیٹل ہونے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ زہرا سے شادی کرتے اس نے آنکھیں پھیر لیں، سب کچھ فی الفور اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا تھا۔ جب زہرا نے اس کے گھٹیا مطالبات والدین کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا تو وہ انسان سے شیطان بن گیا۔ ایسے تشدد اس پر کرتا رہا کہ حاجی صاحب کی بیان کرتے ہوئے داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ انہوں نے لاکھوں روپے اس لالچی گدھ کو دے کر اپنی بیٹی کی جان چھڑائی، اور اب یہ نہیں۔ یہ بیگم جمال کے رشتے داروں میں سے تھا، پڑھا لکھا۔ حاجی صاحب نے ہی بلوا کر نوکری دلوائی کہ خود منہ سے زہرا کا رشتہ مانگ بیٹھا۔ وہ پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، سو بیگم جمال کی بہن کی موت بہانہ بنی۔ انہوں نے دونوں کو نعیم سے بالا ہی پاکستان 1 ہفتے کے لیے بھجوا دیا اور اگلے روز گھبرا کر مجھے بھی روانہ کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور مسئلہ ہو ہی کیا۔ نعیم بھی دوہرے چہرے والا نکلا، اوپر سے مہذب اور معصوم، در حقیقت وہی لالچ، ہرس، طمع کا مارا ہوا۔ بیچاری زہرا جمال۔ گھر کی گلی مڑتے ہی میں نے تعصب بھری نگاہ زہرا کے سادہ سے چہرے پر ڈالی اور گہرا سانس لے کر رہ گیا۔
समझी तुम कैसे वहां इतने सब्र से बैठे रहते हो। ढाई ढाई तीन तीन साल मुड़कर नहीं देखते, मर्द होकर ऐसी बर्दाश्त। तभी तो मेरा दिल यकीन नहीं करता था। मुदस्सिर मियाँ, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अरे जब हर घड़ी ऐसा मासूम फितना सूरत के जब ऐसा मासूम फितना सूरत के सामने हो तो किस काफिर को बीवी जैसी मदकूक चीज याद आएगी। बस आज मुझे साफ साफ बताओ, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और ये कौन है, और तुम्हारे दिल में कहाँ है, कहाँ तक है। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि फरीदा ऐसा हंगामा करेगी। अगरचा ये हंगामा रात गए बंद कमरे में बरपा हुआ था, मगर ये कमरा कोई दुनिया के आखिरी किनारे पर तो था नहीं। इसी कमरे में उसकी दीवार जुड़ी थी जिसमें बेगम जमालदीन और जहरा जमाल सो रही थी, और फरीदा की फटे बांस जैसी आवाज मेरे घर की मिन्नत वास्ते और फरीदा की फटे बांस जैसी आवाज मेरी घुड़की मिन्नत वास्ते, सब बेकार। वो तो बिखरी हुई शेरनी बनी हुई थी। क्या क्या हाथ आया मुझ बदनसीब के। देखो देखो, इस जुदाई ने मेरी क्या हालत कर डाली। लोग मिलते हैं तो पूछते हैं, फरीदा कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुझे, और मैं नसीबो जली क्या बताऊं उन्हें। मुझे छोड़े का साड़ लगा है अपने ही शोहर को अपने ही हाथों मुझे विछोड़े का साड़ लगा है अपने ही शोहर को अपने हाथों खुद से दूर करके क्या हाथ आया मेरे। मेरा बदरूह बंदा जिसम इस खंडर में पड़ा गल सड़ रहा है, और वो डॉलर कमाने के बहाने वहां ऐश कर रहा है। इसे तो कोई बीमारी कोई रोग नहीं लगा। भला चंगा मुझसे दुगना पुरशबाब, और मैं क्या हो गई। आज रात हाथ लगा तुम्हारे इस इत्मीनान का, दिलासों और झूठी कस्मों का। वो अब रोना शुरू हो चुकी थी। खुदा का वास्ता है फरीदा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अल्लाह रसूल की कसम खाता हूँ, तुम्हारे सर की कसम। मैं रजाजत से धीमी आवाज में कहते हुए उसके सर की तरफ हाथ बढ़ाना ही चाहता था कि वो बिदक कर यूं परे हुई जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मर जाऊंगी कुछ खाकर अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया। जब तक साबित नहीं करोगे इस सोने की कान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वो मुंह और बनी हुई थी। कैसे कैसे साबित करूं। मैं बेबसी की इंतहा पर था, और तंग आकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर शहर में टहलता रहा, फिर शिकस्ता कदमों से सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गया। ऊपर शायद 14वीं का चांद था, हर तरफ धूरिया चांदनी चटकी हुई थी। खस्ता हाल ईंटों की मुंडेरों वाली छोटी सी छत, जहाँ पतंगे उड़ाते लूटते मेरे बचपन की दोपहरें और सपहरें गुजरी थीं। इस वक्त कैसे अजनबी नजरों से मुझे देख रही थीं। टहलते टहलते थक कर मैं सीमेंट के बने टूटे फूटे शयनशीन पर बैठ गया। कुछ देर फरीदा के इस्ताल पर गौर करते जलते कुड़ते सोचता रहा। फिर कब वहीं लुढ़क कर मेरी आंख लगी मुझे पता भी नहीं चला। सुबह सूरज की तेज किरणों ने मुझे झंझोड़ कर उठाया तो थोड़ी देर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इधर कैसे आया। फिर रात का सारा मंजर याद आते ही मैं तेजी से नीचे जीने की तरफ लपका। वो बेवकूफ औरत न जाने इन दोनों से क्या बक बैठे, और इससे आगे मैं कुछ सोचना नहीं चाहता था। नीचे मुकम्मल खामोशी थी, दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और सहन में बने गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। फिर बाकी के 4 दिन फरीदा का मूड इसी तरह सीख पर चढ़े कबाब की तरह जला बुना ही रहा। उसके मिजाज की ये कैफियत देखकर मैंने भी उसे दोबारा नहीं छेड़ा। पता नहीं बेगम जमाल और जहरा क्या समझें क्या नहीं। बहरहाल अगले दिन वो अपने अजीजों से मिलने चली गईं, और तीसरे दिन ही वापस आईं, जब अगली सुबह हमारी रवानगी थी। मैंने इन दिनों में प्लॉट का नक्शा देखकर पसंद कर लिया था। घर की बुनियादों का काफी काम मेरे सामने ही हो गया था। जितने पैसे बैंक में हैं उससे बामुश्किल दीवारें खड़ी होंगी। बाकी के लिए क्या करेंगे। ये वाहिद गुफ्तगू थी जो फरीदा ने इन 3 दिनों की नाराजगी के दौरान जरा आराम से की थी। देखता हूँ जाकर, मैं शकिस्तगी से बोला। हकीकतन मुझे उसके रवैये ने बहुत दुख दिया था। वो मुझे इतना गिरा हुआ समझती है, इसका मुझे इल्म नहीं था। बेगम जमाल और जहरा ने उसे सोने के सेट का तोहफा दिया था, जिसे उसने बड़ी नखुवत से एहसान करके लिया था। बाद में मैंने उसे इशारे कनाइयों में समझाया कि उसे भी जाते हुए इन्हें कुछ तोहफे देने चाहिए, मगर वो अनसुना करके फिरती रही। आखिरी शाम मैं खुद ही अनारकली जाकर उन दोनों के लिए कपड़े पैक करवा कर ले आया, और फरीदा के इधर उधर होते ही बेगम जमाल को फरीदा की तरफ से कहकर दे दिए। उस लम्हे जहरा के चेहरे पर कैसी ज़ूम आईनी मुस्कुराहट थी कि मैं ख्वामख्वाह शर्मिंदा सा हो गया। और ये मेरी बदकिस्मती कि फरीदा को इन तोहफ़ का इल्म हो गया। शायद छोटी गुड़िया ने बताया हो। उसके अंदर जैसे कोई मुंह बंद आतिशफशां खुलने लगा। अब तुम जा रहे हो तो बेहतर है वहां से कोई फैसला मुझे लिख भेजो। मैं तुम्हारी जुदाई तो सह सकती हूँ, पर अपने सुहाग में दुई नहीं बर्दाश्त कर सकती। दूसरी औरत ख्वाह किसी भी ताल्लुक से तुम्हारे नजदीक हो, मैं मरकर भी गवारा नहीं कर सकती। और ये भी मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने फरीदा को बता रखा था कि हाजी साहब की बेटी पहली शादी के बदतरीन तजुर्बे के बाद स्टोर के ऑफिस में आकर बैठने लगी है, और मैं उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। उसने मेरी बात को यूं ही लिया था कि हाजी साहब की बेटी कोई उम्र रसीदा मामूली शक्ल की यूं ही सी औरत होगी, या शायद आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला था। और अब जहरा को देखकर तो वो जैसे पागल ही हो गई थी। शायद तसव्वुराती तौर पर उसने मेरे और जहरा के बीच कोई बहुत ही करीबी ताल्लुक भी बना लिया था, और मैं इस ख्याल पर ही ला हौला वला पड़ता रहता। सद शुक्र कि हमारी रवानगी का वक्त आ गया।
फरीदा की नाराजगी और गुस्से में जरा भी फर्क नहीं आया था। मुझे तो पता ही नहीं था वो यूं दीवानों की तरह मुझे चाहती है कि तसव्वुर में भी किसी के साथ मुझे शेयर नहीं कर सकती। उसके गुस्से पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। अब जाकर हाजी साहब से कहूँगा मुझे 1 महीने की छुट्टी दें। मैं अपने घर का काम मुकम्मल करवाना चाहता हूँ और अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी के सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता हूँ। मैं एयरपोर्ट रवाना होने से पहले दिल में इरादा बांध रहा था और मुझे नहीं पता था कि एक इरादा कुदरत भी बांध रही थी। मेरी जिंदगी अब शायद 6 महीने है या फिर साल भर। डॉक्टर्स का यही कहना है कि पेट का कैंसर मेरे सारे वजूद में पंजे गाड़ चुका है। समझ में नहीं आता, अगर मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी को यूं ही तिश्नाए लब रखना था तो मुझे थोड़ी मोहलत ही ज्यादा दे देता। साल 2 साल मैं क्या करूं मुदस्सिर, मेरे पास वक्त ही बहुत कम है। हाजी साहब हमारी आमद के तीसरे दिन मेरे अपार्टमेंट पर तशरीफ लाए थे और इसी तरह भीगी दाढ़ी के साथ कह रहे थे और मैं तो ये इंकशाफ सुनकर ही भौंचक्का रह गया। ये क्या कह रहे हैं हाजी साहब? आप, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैंने संभल कर कहना चाहा। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया आज तुम्हारे सामने झोली फैलाकर आया हूँ। मेरी बेटी जैसी है तुम्हारी नजरों के सामने है। शरअ किसी भी मुसलमान को 4 शादियों की इजाजत देती है अगर वो कफालत कर सके। मेरा सारा बिजनेस, घर सब जहरा का है। तुम उसे अपना तहफ़्फ़ुज़ दे दो। मैं कब्र में लेटा भी तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। मेरा मान रख लो मुदस्सिर, मेरा बेटा बनकर मुझे इस अजियतनाक मौत से बचा लो। मेरी बेटी को यूं इस शहर बेईमान में छोड़कर मैं आराम से मर भी नहीं सकूंगा। वो हिचकियों से रो रहे थे और मैं गंग बैठा था। हाजी साहब प्लीज हौसला करें, अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है। आप जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ और मेरे जवान होते बच्चे। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता अल्लाह के आगे गिड़गड़ाता रहा हूँ, वसीला मांगता रहा हूँ। अब उसका वास्ता देकर तुम्हारे आगे गिड़गड़ाता हूँ। मुझ पर रहम करो मुदस्सिर, मुझ मरते हुए बूढ़े पर। वो झुककर मेरे कदमों में ढेर होने को थे कि मैंने लपक कर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। हाजी साहब मुझे गुनाहगार ना करें प्लीज, मैं सोचता हूँ आपको सोचकर जवाब दूंगा। प्लीज हौसला करें, खुद को संभालें। मैं उन्हें संभालते हुए खुद बिखर रहा था। ये तकदीर ने मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। अगर हाजी साहब के एहसानात को देखते हुए उनके बिस्तरे मर्ग पर पड़े वजूद का ख्याल करके जहरा से शादी की हामी भरता हूँ तो फरीदा के शकूक को यकीन में बदल दूंगा। और अगर हाजी साहब को इनकार करके अपनी मोहब्बत को सुरखरू करना चाहता हूँ तो रोजी रोजगार से जाऊंगा। ओह मेरे खुदाया, ये कैसा मुश्किल फैसला था। 2 रातें जागने और दिन रात सिगरेट फूंकने के बावजूद भी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। ये शहर उसी वक्त तक आपका है जब तक आपकी जेब डॉलरों से भरी रहती है। सर पर अपनी छत हो तो फिर भी कोई बेईमान नहीं होता। जहरा जमाल की जेब ही डॉलरों से नहीं भरी बल्कि उसके सर पर अपनी छत भी है, जबकि फरीदा और मेरे बच्चे तो इस खस्ता हाल खंडर में बेअमा पड़े हैं। अगर इस बरसात में जोरों की बारिश हुई तो कहीं मेरे दामन में उम्र भर के पछतावे ना रह जाएं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं फरीदा से अपनी बीवी से बेवफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। दूसरी रात के आखिरी पहर फैसला हो गया और मैंने बैग निकालकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी और हाजी साहब को बताए बगैर 2 दिन बाद सीट मिलते ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। और मुझे खुशी थी इस बात की कि ये मेरा परदेश से अपने घर की तरफ हतमी सफर था। अब मेरे और मेरी बीवी और बच्चों के बीच कोई सफर, कोई दूरी नहीं आएगी। इसी सरशाली ने एक बार फिर मुझे महवे परवाज होने की ताकत दी थी। कुछ देर के लिए मैं हाजी साहब की बेबसी और उनके आंसू भी भूल गया और जहरा जमाल तो मेरे ख्यालों में कहीं थी ही नहीं। प्लॉट और ये घर बेचकर हम कोई छोटा सा मुनासिब घर ले लेंगे और जो सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं उनमें से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दूंगा तो कोई मसला नहीं रहेगा। मैं बेहद मुतमईन पुरसुकून सा एक बार फिर फरीदा के पहलू से लगा हुआ उसे अपनी प्लानिंग से आगाह कर रहा था। मेरा दिल और दिमाग इतना हल्का फुल्का था जैसे उन पर कोई वजन था ही नहीं। वो मेरे शानदार घर के ख्वाब, मुझे लगा फरीदा की आंखों में उस टूटते ख्वाब की खिड़कियां बड़े जोर से चुभी थी। कुछ अरसा इंतजार कर लो, थोड़ा सेट होते ही हम। खुदा के लिए, वो एकदम से फट पड़ी। कितनी लंबी उम्र नजर आती है तुम्हें मेरी। क्या लाठी टेकती आंखों में बस साए देखने की चमक लिए अपने ख्वाब की ताबीर देखूंगी? पिछले 11 सालों से तुम मुझे अपने आलीशान महल जैसे ख्वाब से बहला रहे हो और अब फिर खाली हाथ, खाली दामन लिए चले आए हो नए ख्वाबों के बहलावे लेकर। वो किस जाविये से बोल रही थी लम्हा भर को मैं बिल्कुल समझ नहीं सका। और वो जो 3 लाख का राग अलाप रहे हो, खुद ही तुमने कहा था उससे मैं राशिद भाई को अपने घर की तामीर के लिए 2 लाख रुपए दे दूं। जब हम बनाना शुरू करेंगे तो ले लेंगे। और उन्होंने तो अभी घर बनाना शुरू ही किया है, वो कहाँ से लौटाएंगे? बाकी 1 लाख से क्या करोगे बताओ जरा। यहाँ एक 1.5 मरले का एक कमरे का घर 15 लाख में मिल रहा है। और ये खंडर जिसे तुम जाते हुए अपने बड़े भाईजान के नाम करने का वादा कर चुके हो, क्या वो तुम्हें करने देंगे? वो बोल रही थी कि चीख रही थी। गीली लकड़ी की तरह उसमें से चिंगारियां और धुआं निकल रहे थे और मैं टुकर टुकर आंखों में चुभते धुएं की परवाह किए बगैर उसे देखे जा रहा था। और बच्चे, उनको जो पिछले साल महंगे तरीन स्कूलों में दाखिल कराया है,
2-4 सालों में कॉलेजों में और फिर उनकी शादियां। सारी उम्र तो कमा कमा कर बहन भाइयों में लुटाते रहे हो, अब अपने बच्चों का टाइम आया तो फायर शायरी, कनात और रूकी सूफी के सारे दर्स याद आ गए। वो एक के बाद एक आईना तड़ा तड़ा कर तोड़े जा रही थी और मैं किसी बुत की तरह बेहिस बैठा था। मेरी मुसलसल चुप पर उसने आखिरी हरबे के तौर पर फपक फक फपक फक फक कर रोना शुरू कर दिया। वो रोए जा रही थी और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे दिलासा दूं तो किन अल्फाज में? उसे इस वक्त लफ्जों, खोखले लफ्जों और गैर मरी ख्वाबों की जरूरत नहीं थी। फिर किस चीज की जरूरत थी? मैंने खाली जहनी से उसके भीगे हुए चेहरे को देखा। तो तो क्या करूं? मेरी आवाज किसी गहरे अंधेरे कुएं से आई भी थी या मेरा वहम था? तुम तुम वापिस चले जाओ। उसने मेरा वहमा सुन लिया था। वापिस? मेरे लब बदिक्कत हिले। हाँ, तुम पहली बार अपनी मर्जी से गए थे, अपनी खुशी से। इस बार हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। उसने पहली बार जाने को भी मेरी खुशी करार दे दिया। औरत बहुत सारे तावान, जिम्मेदारियों की सूरत मर्द के कंधों पर रख दिया करती है। और वापस जाने की कीमत मालूम है तुम्हें? मैंने तल्खी से उसे देखा। हमारी गुफ्तगू उसी मुकाम पर आकर थम गई थी जहां से चली थी। लम्हे हम दोनों के बीच साएं साएं करते सिरकने लगे। तुम जाकर जहरा जमाल से शादी कर लो। मैं तुम्हें खुद खुशी से इजाजत देती हूँ। मुझे उम्मीद थी ये बम फोड़ते हुए वो धाड़े मार मार कर रोएगी, मगर उसका चेहरा सपाट था, आंसुओं से थोड़ा गीला, थोड़ा खुश, मगर बिल्कुल सपाट। तुम जहरा जमाल से शादी कर लो। उसने यूं कहा था जैसे कह रही हो तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। माँ, ना ना बताना अपने कुंबे कबीले को, और बता भी दो तो उन्हें भी परवाह नहीं होनी चाहिए जब मुझे परवाह नहीं तो। उसने जरा दिलबर से अंदाज में कहते हुए नाराजगी से मेरे रुखसार को छुआ। मेरा सर झुक गया। अब यहाँ किसी को पता नहीं कि तुम आए हो, और तुम्हारे हाजी साहब को भी शायद इल्म ना हो, और अगर हो भी तो कोई मजबूत बहाना बनाकर कि बीवी मरते मरते बची है, उसका पता करने गया था, ये कह देना। वो मर गई, उसने बेतासुर से लहजे में कहा, और कुछ देर मुझे देखती रही, फिर उठकर बाहर निकल गई। औरत क्या चीज है और मर्द का मुकद्दर क्या है? मर्द का मुकद्दर सारी जिंदगी औरत की खुशी, उसकी रजा के लिए भेंट चढ़ता रहे और फिर भी बेवफा हरजाई ही कहलाता रहे। ये कैसा मुकद्दर है मर्द का? सारे फैसले जालिमाना कठोर फैसले औरत करे, फिर भी वही मजलूम कहलाए। मर्द जालिम जाबिर। जैसे जैसे सब सुनेंगे तो मुझ पर 100 बार लानते भेजेंगे कि वफादार बीवी को लात मारकर दूसरी औरत को दौलत की हवस में अपना लिया। मुझसे बड़ा जालिम कौन होगा? और फरीदा से बढ़कर मजलूम कौन? मैं ये सब कुछ जानता था। फरीदा के फैसले के आगे सर झुकाने के बावजूद समझता था कि मैं खुद पर क्या जुल्म करने जा रहा हूँ। सारी दुनिया की मलामत सहने जा रहा हूँ, और इस जालमाना फैसले की डोरी जिसके हाथ में है वो सबकी नजरों में मजलूम होगी, बेचारी, बेबस। और फिर भी मैंने इसके फैसले पर अमल किया। खोट उसकी मोहब्बत में था या मेरे इरादे में? मेरी कस्में बोली थी या फरीदा की मोहब्बत कमजोर, या इन दोनों में से भी बड़ी कोई हकीकत है? इस कुर्रा अर्ज की, इस दौर की सबसे बड़ी हकीकत, आशिक की पहचान, महबूबा की मोहब्बत, बेलचक इरादे और सच्ची मोहब्बत से ताकतवर, दौलत की हकीकत, डॉलर की ताकत, जिसके आगे फरीदा की मोहब्बत सरनगू होकर रह गई, और मेरी कस्में, वादे, इरादे सब मिट्टी का ढेर हो गए। मैं जितना सोचता हूँ उतना उलझता हूँ। इन 3 रेशमी धागों की डोर उलझती जा रही है, और मेरे हाथ, मेरा दिमाग इन 3 रेशमी उलझनों को सुलझाते सुलझाते लहू हो रहा है। मोहब्बत, यकीन और दौलत, इनमें से किसकी डोर सबसे मजबूत और गालिब है? वो हकीकत जिसको मानकर मैं अपनी बीवी, अपने शहर, अपने घर और गलियों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अलविदा कह आया हूँ। आखिर इस गैर मुतज़लज़ल हकीकत को मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? शायद मोहब्बत और यकीन की कोई बुझी हुई चिंगारी सुलग रही है, बुझ जाएगी। दौलत के ढेर के नीचे दबकर वो भी बुझ जाएगी। मैंने थक कर अपना सर जहाज की सीट से टिका दिया और आंखें बंद कर ली।